हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं, हम शिव जी के शिव जी हमारे हैं। 8 मूर्तियां हैं शंकर की। ये ध्यान से सुनो, शिव पुराण जो कह रहा है 8 मूर्तियां हैं। उनमें पहले तो ये जो 5 महाभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पांचों शिव की ही मूर्ति है। फिर सूर्य, चंद्र और अग्नि। यजमान, ये ध्यान देने वाली बात। आकाश, वायु, तेज माने अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और यजमान, ये भी शंकर की मूर्ति। क्यों? क्योंकि शिव को भजने वाला शिव रूप हो जाता है। या तो शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। शंकर जी की उपासना करने वाला भी शिव स्वरूप ही है। तो 8 मूर्तियां शंकर जी की कही गई है। 5 महाभूत शिव की मूर्तियां हैं। सूर्य शिव की मूर्ति है, चंद्रमा शिव की मूर्ति है, और आराधना करने वाला यजमान शिव की मूर्ति। और इसलिए शंकर जी के 8 नामों से शंकर जी की अर्चना करना चाहिए। शर्व एक नाम है, शर्वाय नमः। शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्। शर्वाय च नमः, भवाय च नमः। शर्व दूसरा नाम है भव। भवम भवानी सहितम नमामि। स, श और श तीनों के उच्चार में ध्यान रखना। घना सर्व ने शर्व के, सवार ने सवार ज कहेवाय, शवार न कहेवाय। આવતીકાલે સવારે એને બદલે બહુ એ વળી ચોખ્ખું બોલવા જાય પાછું, આવતીકાલે સવારે આવીશ। પણ સવારે શું કામ ભાઈ? સવારેનું સવારે જ હોય। सकलो शकलो महाभूत। सकल નો અર્થ બદલાઈ જાય અને શકલ નો અર્થ બદલાઈ જાય। શું થાય ભાઈ? સમજાવો, વ્યાકરણ શાસ્ત્રી સમજાવો। सकलो शकलो महाभूत, स्वजनो स्वजनो। સ્વજનો स्वजनो અને સ્વજનો। सकल એટલે बधा। બધો, બધા, અને શકલ એટલે शकट। હા, शकट। सकलो शकलो महाभूत અને સ્વજનો स्वजनो। સ્વજન એટલે स्व कुतरो। સ્વ એટલે કૂતરો થાય, કુત્તાજન। એટલે વ્યાકરણ શીખવું પડે વાલા, કે જેમ બોલાતું હોય એમ જ બોલાય। હા, પછી લોક બોલીની અંદર એના થોડા સનો હ થાય ને એ બધું બરાબર છે। સુરતમાં તો જાઓ ત્યાં તો સનો હ જ કરે। સુરેશ ને હુરેજ કે શાકભાજી। તનો ટ કરે અમે હુરટી। તમે હો આવ્યા, તમે હો આવવાના।
અને આજે વિદેશમાં હું એકવાર ત્યાં કેનેડા ઉતર્યો ને તો મને જે ભાઈઓ લેવા આવ્યા હતા એ ભાઈ જે ગાડી ચલાવતા હતા ટિપિકલ સુરતી બોલે. મને વાહ, ભલે ને આપણે કેનેડામાં કેટલા વર્ષથી રહ્યો, મને કે 20 વર્ષ થઈ ગયા. મેં કીધું આ બદલતા નહીં, પ્યોર એમ ને એમ ફૂરટી જેવી હોય એવી આપણે રાખવાની અકબંધ. પાકી રોટી. તો શર્વ એ શિવજીનું નામ છે. સર્વ એટલે બધું, પણ શર્વ. બીજું નામ ભવ, ત્રીજું રુદ્ર, રુદ્રાય નમઃ. ચોથું ઉગ્ર, ઉગ્રાય નમઃ. પાંચમું ભીમ, ભીમાશંકર છે ને, ભીમ ભયંકર. છઠ્ઠું ઈશ્વર, ઈશ્વરાય નમઃ. સાતમું મહાદેવ અને આઠમું પશુપતિ. પશુનામ પતિમ પાપનાશમ પરેશમ. પશુપતિ ક્યાં બિરાજે છે? પશુપતિ રૂપે નેપાળ, કાઠમંડુ. અને ભીમાશંકરાય મહારાષ્ટ્રમાં. મહારાષ્ટ્રમાં અને નજીક નજીક 5 જ્યોતિર્લિંગ છે 12માંથી. વચ્ચે અમે મુંબઈથી 5 જ્યોતિર્લિંગ યાત્રા કાઢેલી, મજા આવી ગઈ હતી. ત્રંબકેશ્વર ગયા, દૃષ્ણેશ્વર ગયા, ભીમાશંકર ગયા, ઓઢાનાગનાથ ત્યાં ગયા. तो भीमाशंकर महाराष्ट्र में. तो इन 8 नामों से भगवान शंकर की अर्चना करना चाहिए. अच्छा, 10 उनका परिवार है, उनके साथ 10 रहते हैं. ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष नंदी, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम અને શુક્ર. આ 10 શિવજીનો પરિવાર. શિવજીના સમક્ષ વીરભદ્ર અને શિવજીની પાછળ કીર્તિમાનની પૂજા કરવાનું વિધાન છે. અગિયાર રુદ્ર અને શિવજીનો મંત્ર પંચાક્ષર. એને પ્રણવ લાગે એટલે ઓમ પહેલા લગાડી પછી નમઃ શિવાય. ભસ્મથી ત્રિપુંડ કર્યા વિના, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા ધારણ કર્યા વિના શિવ પૂજામાં ન બેસાય. એના દ્વારા અધિકારની પ્રાપ્તિ થાય. ગળામાં તુલસીની માળા, તિલક અને વ્રજરજ મુખમાં મૂકી અને વૈષ્ણવ ભગવાન નારાયણની સેવામાં સમર્પિત થાય. એમ ભસ્મના ત્રિપુંડ અને ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા અને હારે લાટ બધા બિલીપત્ર લઈ, બીજું કાંઈ ન હોય તો એક લોટો જળ ને બિલીપત્ર લઈ, પણ ભસ્મના ત્રિપુંડ, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા લઈ અને પછી લોટો પાણી ચડાવી ભગવાન શંકરને અને બિલીપત્ર ચડાવી દઈએ. પત્યું. બિલીપત્ર, બિલ્લીનું ઝાડ પોતે જ શિવ સ્વરૂપ છે. બિલીના ઝાડના મૂળમાં બધા જ તીર્થોનો વાસ છે.
जितने भी तीर्थ कहे गए हैं उन सभी तीर्थों का वास बिल्व वृक्ष की जड़ में। ऐसा लिखा है कि वहां पानी देने से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और बिल्व पत्र की जड़ में जो जल है खामणा खामणું કર્યું હોય અને એમાં પાણી આપ્યું હોય, એ ખામણાના જલથી આમ પ્રોક્ષણ કરી લઈએ ને તો બધા જ તીર્થોના સ્નાનનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય. બિલ્વ વૃક્ષના નીચે એ ખામણા પાસે બેહાડી અને ત્યાં બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવવામાં આવે. એનો ही बहु महिमा है. शिव पुराण है तो उससे संबंधित सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सुत जी के द्वारा बताई जा रही है. यह कथा भी सुत जी कह रहे हैं. सुत पौराणिक है, सभी पुराणों की कथा सुनाने वाले पौराणिक सुत हैं और वे ही ऋषियों को सुना रहे हैं. कई लोग ऐसा कहते हैं कि शिव नैवेद्य में सबका अधिकार तो नहीं लेना चाहिए. अब कौन कीधु? शिव को भोग लगाया हुआ जो भी नैवेद्य है उसके दर्शन मात्र से पाप का नाश होता है, तो लेने से तो पता नहीं. प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए शिव नैवेद्य. लेकिन शिवलिंग को जो ऊपर जो समर्पित किया जाता है या शिवलिंग का स्पर्श जिसको हो गया उसका ग्रहण नहीं. ये एक परंपरा, एक मर्यादा हमारे यहां है. लेकिन देखो, शिवलिंग का स्पर्श पाया हुआ जो भी नैवेद्य है, केला, पेंडा, बर्फी, काजू कतरी, न्या ऊपर को के धरी दीधु अने भूख लागी हमें प्रसाद छे महाराज अने काजू कतरी पेंडा ने होय पछी रेवाय. डायबिटीज वाळाने पाछुं वधारे मन थाय. हवे शिवलिंगनो स्पर्श थयो होय ने त्यां ई रीते चढ़ाववामां आव्युं तो आम लेवाय नहीं. पण ऐसा नैवेद्य भी यदि शालिग्राम शिला आपके पास है तो शालिग्राम शिला के स्पर्श से ग्राह्य हो जाता. એટલે ગળામાં શાલિગ્રામ લઈને ફરવું ક્યાંક કામ લાગે. કામ લાગે. એક જણાના ઘરમાં શાલિગ્રામની પૂજા, અવડા શાલિગ્રામ મોટા બટેટા જેવા એ સાઈઝના શાલિગ્રામ અને નવડાવતો તો હવારના પોરમાં ફળિયામાં ઓલું કૂતર્યું ભસતું હતું. 2 વાર હડ હડ કર્યું, કૂતર્યું ગયું નહીં. પછી ગુસ્સો આવ્યો ને તો છૂટા શાલિગ્રામ માર્યા. એ ભૂલી ગયો કે હું હેનો ઘા કરું. છૂટા શાલિગ્રામ માર્યા, આંટી ગયો અને અવડા શાલિગ્રામ જે કૂતરાને લાગ્યા ને તો બચાડું રોતું 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 વહી ગયું ત્યાંથી. પછી આને ખબર પડી કે અરે મેં શું માર્યું. દોડીને ગયો, શાલિગ્રામ ભગવાનને લઈ આવ્યો, માથે ચડાવ્યો, માફી માગી અને વળી પાછા સ્નાન કરાવતો કરાવતો કે 15 વર્ષથી પૂજા કરું, આજ કામ આવ્યા. બોલ્યો 15 વર્ષની પૂજા પછી શાલિગ્રામ ભગવાન એને આવા ફળ્યા. तो शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से ही शिवलिंग को स्पर्श हुआ है, वह नैवेद्य भी ग्राह्य हो जाता.
नहीं तो उसमें चंड का अधिकार है। आप लोगों ने कई शिव मंदिरों में देखा होगा, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है और जो भी समर्पित किया जाता है, फलों का रस, शेरडीना रस थी, शिव जी ऊपर अभिषेक था, बता फलों रस थी, अभिषेक था। और वो जब जलाधारी से होते हुए उत्तर की ओर से बहते हुए जाता है, तो कभी कभी मंदिर में वहां बाहर एक चंड को रख दिया जाता है और चंड यूं हाथ धर करके उस जल को पी लेता है। उसमें उस चंड का अधिकार, तो चंड उसको पी लेता है। और चंड की मूर्ति इस तरह से बनाई जाती है कि वो चंड मुंह से पी ले, वो शिव नैवेद्य, शिव निर्माल्य उसको पी ले और फिर उसके इंद्रिय भाग से वो बाहर निकलता। પછી એને કૂદીને આમ જાય ને તો એમાં દોષ નથી। તમને સમજાવું, સાંદીપનીમાં ભગવાન ચંદ્રમૌલીશ્વર બિરાજે છે, उत्तर भाग तरफ बिराजे છે, जलाधारी उत्तर तरफ છે, शिव पश्चिमाभिमुख છે। પણ આપણે સાંદીપનીમાં હરિમંદિરની આખી પરિક્રમા કરીએ છીએ। આમ તો શિવ નિર્માલ્યને વળોટાઈ નહીં, અપરાધ છે, પણ ત્યાં ચંડ મૂક્યો છે, चंड पी लेता है वह। फिर परिक्रमा करने में दोष नहीं। तो शास्त्र परंपरा के अनुसार मंदिरों की सब रचना और मंदिरों की व्यवस्था होती, क्योंकि वहां से अलग से एकदम बनाया होता शिवालय, तो फिर उसकी वो 3/4 परिक्रमा का व्यवस्था होती। लेकिन यहां साथ साथ पंचदेव पंच शिखर में विराजे हैं, तो हम पूरी परिक्रमा लगाते हैं सभी देवताओं की एक साथ, तो वहां चंड रखा गया। तो शिव निर्माल्य में चंड का अधिकार है, लेकिन उसमें भी एक विधान है कि यदि बाणलिंग है, बाणलिंग माने नर्मदेश्वर, नर्मदा जी के अंदर से निकले हुए पत्थर से जो लिंग बनता है, जिसको नर्मदेश्वर कहते हैं। और नर्मदेश्वर की महिमा भी ऐसी है कि नर्मदेश्वर में भगवान शिव और गंडकी नदी के तट पर मिलते हैं शालिग्राम। शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु, उनका नित्य निवास माना गया। उनमें तो प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है, उनमें नित्य निवास, और स्पर्श मात्र से पाप का नाश कहा गया है, ऐसी महिमा। तो नर्मदेश्वर माने बाणलिंग, या तो लोहलिंग हो, सुवर्ण है, रजत है इत्यादि धातु से बनाया गया लिंग, या सिद्धलिंग, सिद्धों के द्वारा पूजित, जो सिद्ध पुरुष है उनके द्वारा स्थापित पूजित, या तो जिनकी आराधना करके किसी को सिद्धि प्राप्त हो गई है, उसको सिद्धलिंग कहेंगे। या चौथा स्वयंभूलिंग। कई जगह हम दर्शन करने जाते हैं, लोग कहते हैं ये स्वयंभू महादेव है। इन 4 प्रकार के लिंगों में बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और शिव का जो सकल रूप है यानी साकार रूप, इन
पांचों को जो नैवेद्य समर्पित किया जाता है, उस नैवेद्य में चंड का अधिकार नहीं है। वो आप ग्रहण कर सकते हैं, सब लोग ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो चंड का अधिकार माना गया। बाकी शिव जी के सामने वो थाल में भोग लगाया जाए, थाली में આપણે થાળ ગાઈએ, આરતી ઉતારીએ, પછી એ પ્રસાદ બધાને મળે। તો કેવળ શિવલિંગનો સ્પર્શ પામેલી જે કંઈ વસ્તુ નિર્માલ્ય વસ્તુ હોય એમાં અધિકાર નથી, એ ચંડનો અધિકાર છે। પણ મેં જેમ કહ્યું એમ એમાંય તે એવી શિવ નિર્માલ્ય વસ્તુઓને પણ શાલિગ્રામ શિલાનો સ્પર્શ થાય તો વળી પાછી એ બધી જ વસ્તુ ગ્રાહ્ય બની જાય છે, ગ્રહણીય થાય છે। શિવપુરાણ તમે વાંચો ને તો એમાં વિધિ વિધાનનું બહુ મહત્વ છે, વિધિ વિધાનનું બહુ વર્ણન છે વિસ્તારથી, કેવી રીતે કરવું જોઈએ। હિસ્ટોરિકલ પાર્ટ ઓછો અને વિધિ વિધાન એનું ખૂબ વિસ્તારથી વર્ણન છે। તો वेदिका ऊपर से उतरता है शिवलिंग, यह शरीर वेदिका है और जीव चेतना जो है आत्मा वो शिव ही है, ये प्रकृति है और वो पुरुष है। पुरुष और प्रकृति से ही ये संसार चलता है। वो शिव नहीं है तो यह शव हो जाता है शरीर। इसलिए ऐसे भोलेनाथ, ऐसे मृत्युंजय, ऐसे अवधरदानी भगवान शंकर, शंकरोतीति शंकर, कल्याण करने वाले, और शिव मतलब कल्याणकारी जो है, उनकी आराधना करते हुए तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला सोना तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी, तारी धुन लागी भोला तारी धुन लागी। हे हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी। हे पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी, हे पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी। रूप तिहारा न्यारा तुम्हारी धुन लागी, रूप तुम्हारा न्यारा तुम्हारी धुन लागी। रूप तिहारा न्यारा तुम्हारी धुन लागी, रूप तिहारा न्यारा तुम्हारी धुन लागी। हे हर हर भोला शंभू तुम्हारी धुन लागी, हर हर भोला
हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। सिर पर गंगा धारा तुम्हारी धुन लागी। हे सिर पर गंगा धारा तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू 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 तुम्हारी धुन लागी। तारी धुन लागी भोला तारी 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 धुन लागी। पार्वती ना प्यारा तुम्हारी 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 धुन लागी। ऊपर गंगा धारा तुम्हारी धुन लागी। ऊपर गंगा धारा तुम्हारी धुन लागी। रूप तिहारा न्यारा तुम्हारी धुन लागी। रूप तिहारा न्यारा तुम्हारी धुन लागी। तारी धुन लागी भोला तारी 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 धुन लागी। हर हर भोला शंभू तुम्हारी 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 धुन लागी। पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती ना प्यारा तुम्हारी धुन लागी। तिहारा न्यारा तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभू 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 तुम्हारी धुन लागी। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिव संकीर्तन के साथ अब आरती करें भगवान शिव के वांग्मय स्वरूप की। कल पुनः 9:30 बजे से कथा यात्रा का प्रवाह, कथा धारा का प्रवाह आगे बढ़ेगा। आइए भाव और प्यार से जय घोष करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये।
बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। परम पावन परम रम्य उत्तम इस धरा को देखकर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म की मूर्ति भगवान राम को शिवाराधन करने की इच्छा जागृत हुई। यहां पर उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना करी, विधिवत पूजा करी, शिव की महिमा का बखान किया। ऐसी यह उत्तम धरणी और उसमें एक उत्तम संकल्प यजमान परिवार के मन में प्रकट हुआ। मन धरणी बन गया और उसमें शिव की स्थापना हुई, क्योंकि शिव संकल्प हुआ कि हम रामेश्वर में कथा करेंगे, सब भक्तों को ले जाएंगे, भगवान रामेश्वर का गुणगान, रामेश्वर का पूजन दर्शन और आनंद करेंगे। यह शिव संकल्प जो हुआ मन में, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस प्रकार राम जी के द्वारा इस धरती में रामेश्वर की स्थापना हुई, शिव अनुराग के चलते जब किसी भक्त के, किसी वैष्णव के, यजमान के मन में ऐसा शिव संकल्प उठता है कि शिव कथा का आयोजन किया जाए, ये भी मन की धरणी में शिवजी की स्थापना। तब तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय तीर्थ रूप हो जाता है, और जैसे ही शिव संकल्प हुआ तो तुम्हारा मन ही रामेश्वरम हो गया। और फिर उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए, चरितार्थ करने के लिए आप जो पुरुषार्थ करते हैं, आयोजन की पूरी व्यवस्था में लग जाते हैं, वही आपके द्वारा हो रहा शिवार्चन है। आप अनुराग का जल चढ़ाकर शिवाभिषेक कर रहे हैं, अपने तीनों गुणों को भगवान शिव जी की सेवा में लगाकर आप त्रिदल बिल्व से शिवाराधन कर रहे हैं। शिव अनुराग के चलते आप जो धन इत्यादि का त्याग कर रहे हैं, सब लोग घर परिवार, अपना व्यवसाय कुछ समय के लिए छोड़कर यहां आए हैं। यह छोड़ने की एक जो वैराग्य की वृत्ति है, वही भस्म है, और इस भस्म से आप शिवाराधन कर रहे हैं। और ऐसा आयोजन करना, ऐसा कार्य करना कोई मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारे मन की इच्छा है। और इसलिए जितने भी आए उन सब का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हो। बिना रजिस्ट्रेशन के भी यदि कोई आ गए तो भाई हितेश कह रहा था कि सबकी व्यवस्था कर ली है, कि भाई चिंता मत करो, सबकी व्यवस्था हो जाए। ये जो प्रसन्न मन है,
ये प्रसन्न मन ही पुष्प है जिससे तुम शिवार्चन कर रहे हो। हृदय कमल खुला हुआ है, यही कमल का फूल है। हृदय जहां खुला हुआ हो तो उदारता आती है, खिला हुआ हो प्रसन्नता, महकता हुआ हो वो सच्चरित्र है। सच्चरित्र ही सुगंध है, प्रसन्नता ही इस हृदय रूपी पुष्प का खिलना है। और इस कमल से तुम शिव अर्चना कर रहे हो, शिवार्चन कर रहे हो। कल हम कुछ चर्चा कर रहे थे वेदिका, उसमें शिवलिंग का स्थापन, पहले ये चौकी लगाई जाती है, फिर भागवत, रामायण, शिव पुराण जो भी कथा हो उसके अनुसार उस ग्रंथ को लाकर के पधराया जाता। तो पहले वेदिका तैयार हो गई और वो जो ग्रंथ है वही शिवलिंग है। शिव पुराण है तो वो शिवलिंग है। और ये जो चौकी है पहले से आपने तैयार करके यहां रख दी, यही वेदिका है। व्यासपीठ पहले से तैयार रखी जाती सजाकर, व्यासपीठ वेदिका, और उस पर जिस वक्ता की नियुक्ति हुई है वह आकर के बाद में बैठ जाता है तो वो शिवलिंग है। बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, शिवार्चन करने वाला शिव स्वरूप है। इसलिए कल हम चर्चा कर रहे थे जो 8 रूप है शंकर जी के, 8 मूर्ति है शिव जी की, उसमें आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और यजमान, ये भी शिव की मूर्ति है। व्यासपीठ वेदिका, और इस पर बैठ गया हूं पालथी लगाकर, यह लिंग है। इसको लिंग शरीर कहते हैं। लिंग का एक अर्थ होता है शरीर, लिंग का एक अर्थ होता है चिन्ह। सुखदेव जी जब गंगा के तट पर पधारे, राजा परीक्षित पर अनुग्रह होने जा रहा था, अनुग्रह करने नहीं आए हैं, कोई एजेंडा नहीं है। जब सुखदेव जी घर से चले होंगे, घर से क्या, जहां आसन लगाया होगा और वहां से चल दिए होंगे जब सुखदेव जी सुबह सुबह, तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि गंगा के तट पर जाना है और वहां एक राजा को शाप हुआ है और उसके अनुग्रह करना ना। गंगा की भांति सहज ही बहते हुए गंगा के तट पर आए। जब सुखदेव पधारे तो वहां भागवत में लिखा है, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। अलक्ष्यलिंगः
किसी वर्ण या किसी आश्रम से संबंधित कोई भी चिन्ह सुखदेव जी ने धारण नहीं किया। उनको देखने से पता नहीं चलता कि ये ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। उनको देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं कि सन्यासी हैं। अलक्ष्यलिंगः निजलाभतुष्टः। कोई इच्छा नहीं करते, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि। यदृच्छया गाम पृथिव्याम अटमानः। गो का एक अर्थ होता है धरणी, एक अर्थ होता है गाय, एक अर्थ होता है इंद्रियां, एक अर्थ होता है रस। गो शब्द के बहुत अर्थ है। गाम पृथिव्याम अटमानः यदृच्छया। पृथ्वी में यदृच्छा विचरण करते हुए वहां पर सुखदेव जी आए तो कहते हैं अलक्ष्यलिंगः। तो वहां लिंग का अर्थ है चिन्ह। वर्णाश्रम धर्म को प्रकट करने वाला कोई चिन्ह उन्होंने धारण नहीं किया है। तो लिंग चिन्ह, लिंग शरीर, लिंग शरीर। शिव पुराण में पार्थिव लिंग की बहुत महिमा। पारद का लिंग बनाते हैं, धातु से निर्मित लिंग होता है। हम बाणमय, लोहमय कल चर्चा कर रहे थे अलग अलग प्रकार के लिंगों की। तो मृण्मय जो लिंग है, मिट्टी से बना हुआ पार्थिव लिंग, उसकी बड़ी महिमा। रोज बनाया जाए, रोज पूजन करके रोज विसर्जन किया जाए। हमारे यहाँ ऐसे अनुष्ठान चलते हैं कि नित्य 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन विसर्जन, फिर दूसरे दिन फिर पार्थिव लिंगों का निर्माण, पूजन, विसर्जन। जो मृण्मय है उस लिंग में हम चिन्मय की पूजा करते हैं। जो सकल रूप है यानी साकार रूप है शिव जी का, उसको महेश्वर बोलते हैं, मूर्ति है। उसकी पूजा पंचाक्षर से नमः शिवाय। लेकिन सकल रूप की पूजा करने से भी अकल या निष्कल रूप की पूजा यानी लिंग की पूजा, उसका विशेष महत्व है। लिंग जितना बड़ा उसकी उतनी महिमा, रुद्राक्ष जितना छोटा उसकी उतनी विशेष महिमा। यह है, रुद्राक्ष जितना छोटा उसकी विशेष महिमा, लिंग जितना बड़ा। इसलिए लिंग बढ़ता है तो कई कई जगह आप लोगों ने सुना होगा कि यहां शिवलिंग जो है इतना बड़ा, बोले हर साल तिल भार बढ़ता रहता है, तिल तिल जितना बढ़ता है। बड़ी अद्भुत महिमा है। हिमाचल प्रदेश में मैं कथा कर रहा था, कुल्लू के महाराजा ने कथा का आयोजन किया था।
राम कथा थी और वहाँ रघुनाथ जी का बड़ा महत्व है, राजा के भी इष्ट देव हैं। और कुल्लू के वहाँ पर्वतीय प्रांत के सभी गांव में उनके देव होते हैं, वो काष्ठ के निशान बने होते हैं। उन सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया था और उन सभी देवताओं के लिए एक अलग से मंदिर बनाया था। उनके इष्टदेव भी मंदिर से बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा के साथ महाराजा पधरा ले आए और कथा स्थान में, और वहीं पर मंदिर बन गया था। और महाराजा नित्य पूजा करते, विधिपूर्वक लंबी पूजा चलती, और वो खुद भी मंत्र और श्लोक बोलते थे, जानकार सांसद भी रहे वो। तो एक सत्र में कथा चल रही थी और एक सत्र में हम इधर उधर सब जो प्राचीन मंदिर धर्मस्थान है वहां दर्शन करने जाते। तो वहां एक बड़ा विशिष्ट स्थान है कुल्लू से दूर। अब तो मोटर कार जाती है थोड़े से दूर तक, लेकिन फिर पैदल चलना होता है। बिजली महादेव, बिजली महादेव चलकर जाओ, फिर एक शिखर पर थोड़ा फ्लैट लैंड है, टेबल लैंड है, और वहां एक सुंदर प्राचीन शिवालय है। बड़ी मान्यता है उस स्थान की। उसकी विशेषता यह है, अब ये बिजली महादेव क्यों, अब ये विशेषता सुनो। साल में एक बार वहां रात्रि में कोई सो नहीं सकता, मना। और यदि रात्रि में कोई सोया तो कहते हैं पागल हो जाता, या तो नहीं रहता। तो रात में कोई सो नहीं सकता। भोले बाबा को एकांत चाहिए। એ કૈલાસ સુધી એટલે આગે જઈને બેઠા તો આપણે હક નથી લેવા દેતા। अच्छी बात है, कैलाश की परिक्रमा कर लो, ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, हमारी ये मान्यता है। तो क्या तो भगवान ने हक लेवा देवो જોઈએ। ठीक। वृंदावन में भी रासलीला का जो स्थान है वहां रात्रि में कोई नहीं रहता। तो रात में कोई सोता नहीं है वहां। और वर्ष में एक दिन ऐसी घटना घटती है वहां बिजली महादेव में कि बिजली गिरती है, वर्षा होती है, बिजली गिरती है, और बिजली मंदिर के अंदर प्रवेश करके शिवलिंग को तोड़ देती। टुकड़े बिखर जाते हैं। बड़ी विचित्र घटना। सुबह जब पुजारी और भक्त लोग जाते हैं पूजा के लिए और देखते हैं कि ओ लगता है आज रात को घटना घटी, फिर शिवलिंग के सारे टुकड़ों को जोड़ा जाता है और माखन लगाया जाता है। माखन लगाकर एक एक टुकड़ों को और जोड़ा जाता है, चिपकाया जाता है। एक भी टुकड़ा रह जाए शिवलिंग पूर्ण नहीं होता। और कहते हैं कि एक टुकड़ा भी कहीं इधर उधर रह गया बाकी, तो कहते हैं टुकड़े से ऊं की रोने की आवाज आती। और ला करके माखन लगा करके जोड़ दिया जाता है, फिर से पूरा शिवलिंग बना लिया जाता है। वहां बिजली महादेव पर जल से अभिषेक नहीं होता, वहां माखन लेकर के जाते हैं लोग। अब जाओ मंदिर में तो सामान्यतया जल, बिल्वपत्र, फूल इत्यादि लेकर के हम जाते हैं, चंदन, अक्षत इत्यादि, लेकिन वहां माखन लेकर के जाते हैं। माखन लगाओ।
माखन का लेप करो। तो बड़ी विचित्र घटना। ऐसे विशिष्ट विशिष्ट स्थान भारत में आपको मिलेंगे। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट में मुझे ले जाया गया एक पार्क में। तो वहां शिव मंदिर के अवशेष देखे, घड़े हुए पत्थर और बड़े बड़े पत्थर। जैसे यहां जाओ आप भगवान रामेश्वर का दर्शन कर ले, बड़े बड़े पत्थरों से, और क्या विशाल। दक्षिण के सभी मंदिरों में बड़ी विशालता। तो शिल्प काम हुए, घड़े हुए पत्थर, नक्काशी किए हुए पत्थर, किसी मंदिर का अंश या मंदिर निर्माण के लिए बने हुए पत्थर वहां पार्क में पड़े हुए। और एक जगह शिवलिंग था। तो जंगल में इस तरह से थोड़ा सा पड़ा हुआ था। तो एक किसी वहां के गोरे को मिल गया और उसने सब धीरे धीरे वो प्रसिद्धि होने लगा। आपड़ा माणसो पछी मूके नहीं, दूधनी लोटियो लई लईने પછી ત્યાં બહુ કીચડ થવા માંડ્યો અને બધું ગંધાવા માંડ્યું। એટલે વળી પાછા જે ઓથોરિટીવાળા હતા એ બધા આવ્યા અને એણે વળી પાછું બધું બંધ કરાવ્યું કે ભાઈ ધીસ પ્લેસ ઇઝ નોટ ફોર ટેમ્પલ એન્ડ નોટ ફોર પ્રેયર, ધીસ ઇઝ પાર્ક। આવું બધું થયું। પછી ત્યાંથી મેં સાંભળ્યું છે કે એને હટાવવામાં આવ્યું। लेकिन मैंने पूछा तो ऐसा समाचार मिला कि बहुत वर्ष पूर्व भारत से किसी एक मंदिर के सारे अंश जहाज में लाद कर यहां लाए गए थे मंदिर निर्माण करने। बोलो, सैकड़ों वर्ष पूर्व अमेरिका में पहुंचाया गया। भोले बाबा तो सब जगह, ये सब वही तो जगत कारण है। तो शिवलिंग को फिर वहां से उठा लिया गया और अन्यत्र रखा गया है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन वो मंदिर के जो पत्थर है वो सब वहीं पड़े। बहुत से ऐसे मंदिर हैं और विशिष्ट स्थान हैं। अब ये बिजली महादेव वाला विशिष्ट स्थान, आप कभी जाएं कुल्लू मनाली तो वो आनंद भले ही ले, लेकिन कुल्लू से थोड़े ही दूर है, आप बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। महादेव के मंदिरों में महादेव के नाम में इतना वैविध्य मिलता है, क्योंकि जैसे ही महादेव जी की प्रतिष्ठा करी जाती है तो पुरोहित सब पूछते हैं कि भाई क्या नाम रखना है। उसी वक्त नामाभिधान किया जाता है। सांदीपनी में विराज रहे हैं भगवान चंद्रमौलीश्वर। पहले हमारे बच्चे जहां पढ़ते थे वो बाबड़ेश्वर महादेव है। रामनाथ, कामनाथ, सब अलग 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 नाम। सोमनाथ, दृष्णेश्वर, रामेश्वर, केदारेश्वर, त्र्यंबक, महादेव ही हैं। सब जगह अलग अलग स्वरूप, अलग अलग नाम, और इतना वैविध्य है महादेव के नामों में। एक जगह हम दर्शन करने कहीं जा रहे थे कार से, और कहीं बैठ करके भोजन करना, भोजन साथ लिया हुआ था। तो सोचा कोई बढ़िया रमणीक स्थान मिले तो उसके पेड़ की छाया में बैठ करके प्रसाद पा लें। तो एक सुंदर रमणीक स्थान देखा और वहाँ महादेव जी का एक मंदिर था। तो बोले ये स्थान ठीक है। गाड़ियाँ रोकी
वहाँ गए, पहले मंदिर में तो देखा महादेव जी का मंदिर, तो जाली बंद थी, जाळीमांथी आम डोकું કાઢીને અંદર જરા અંધારું હતું, દર્શન કરવાની કોશિશ કરી મહાદેવજીના, અને મેં આમ અંદર દર્શન કરતા પ્રયાસ કરતા દર્શનનો આમ જસ્ટ પૂછ્યું, મેં કીધું આ ક્યાં મહાદેવ છે, આનું નામ શું? તો મારી હારે આવ્યા હતા ને એમાંથી એક જણો પાછળ ઊભો ઊભો આમ હાથ જોડીને કે મને કે લોકેશ્વર લાગે છે. મેં કીધું લોકેશ્વર તને કેમ ખબર, તું તો મારી હારે આવ્યો? મને કે અહીં લોક માર્યું છે, તાળું છે ભાઈ શ્રી, એટલે લોકેશ્વર. મેં કીધું એ વાત સાચી. મને કે જો ને પૂજારી ક્યાંક વયા ગયા, આ જાળી બંધ કરી અહીં લોક મારી वही आ गया, એટલે लोकेश्वर लागे, ये भी ठीक है. लोकनाथ है, लोकेश्वर है. तो इतना नामों का वैविध्य मिलता है महादेव जी के विषय में. तो वहां बिजली महादेव है, जलाभिषेक नहीं होता, वहां माखन से अर्चना होती है, माखन लगा. तो पूरा शिवलिंग इतना सुंदर सफेद धवल कर्पूर गौर लगता है. यहाँ आप लोग जो पूजा कर रहे हो स्थापित किया है, कर्पूर गौर है रूप. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम. कहने का तात्पर्य है कि सकल रूप जो है यानी साकार रूप जो है वो महेश्वर है, और जो निष्कल रूप है शिवलिंग उसको शिव कहते हैं. तो शिव शब्द जो है वो ब्रह्म के अर्थ में है. और शिवलिंग की पूजा उसका विशेष महत्व बताया गया है, और उसमें ओम प्रणव का महत्व है. निराकार की जब पूजा करो, निष्कल स्वरूप की पूजा करो तो प्रणव से, महेश्वर रूप की पूजा करो तो पंचाक्षर से, और प्रणव और पंचाक्षर दोनों को मिला करके ये मंत्र बनता है ओम नमः शिवाय. ये ओम महादेव के पंचमुख है, पंचमुखी महादेव. एक मुखी हरि लेकिन चतुर्भुज है, चतुर्भुज ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, ब्रह्मा चतुर्मुख है. महादेव पंचमुखी, एक मुख है पूर्व में, एक दक्षिण में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में और एक मध्य में. पंचमुखी महादेव. उत्तर वाले मुख से अकार प्रकट हुआ, पश्चिम वाले मुख से उकार प्रकट हुआ, दक्षिण वाले मुख से मकार प्रकट हुआ अ उ म, और पूर्व वाले मुख से बिंदु अर्धमात्रा जो होती है ओंकार के ऊपर वो प्रकट हुआ, और मध्य वाले मुख से नाद प्रकट हुआ. और इसलिए इस शिवलिंग के जो 5 मुख के भाव है उसी से ये प्रणव का प्रागट्य, इस प्रणव का प्रागट्य. ओ